Hello everyone. So today we'll be talking about that what happens when we start our operating system, what is BIOS, what is UEFI, what is MBR partitioning, what is GUID partition table and all that stuff. So let's get started. So today we'll be talking about what are the steps which happen when we start our computer system. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया, पावर बटन को प्लग किया, पावर बटन ऑन किया, तो अब क्या होगा? सो बेसिकली 4 मेजर स्टेप्स दे हैपन. फर्स्ट ऑफ ऑल you have the CPU. So you have a CPU, right? This CPU will load the UEFI or BIOS, whatever is there in your computer system. So now comes, what is this UEFI or what is this BIOS? So let me tell you, these are very important things in both the terms. Either you are talking about in the interview perspective or in your general knowledge, you must know that what is happening in your computer system, right? So let me tell you about UEFI and BIOS. So UEFI is Unified Extended. It's Unified Extended Firmware Interface. Yeah, so UEFI, it's Unified Extended Firmware Interface and it's new as compared to BIOS. का नाम तो आपने फिर भी सुना होगा. It's like basic input output system और इसका नाम I'm pretty sure computer science students ने सुना ही होगा, basic input output system. So what happens is, so this is Unified Extended Firmware Interface and this is basic input output system. So actually what is the difference between UEFI and BIOS? ये दोनों ही लो लेवल सॉफ्टवेयर हैं. जब हम अपने पीसी को बूट करते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं. ये दोनों ही क्या हैं? लो लेवल सॉफ्टवेयर हैं विच स्टार्ट व्हेन वी बूट आवर पीसी. ओके, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये दोनों अलग अलग लो लेवल सॉफ्टवेयर हैं. आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम आते हैं दे हैव UEFI इंस्टेड ऑफ BIOS. व्हाई? Because UEFI, it's a more modern solution because it supports large large hard drive. You can boot if you have large hard drive, if you have UEFI and not with BIOS. So it support large hard drive. Then it have more security features as compared to BIOS in UEFI. Then also because in UEFI you can have faster boot time. As you can see, आजकल के जो computer systems आते हैं they have more and more faster boot times, and you also search for the computer systems which have faster boot time. So they usually have UEFI because they have faster boot time, they offer more security, they can support large hard drive. So ऐसा क्या है UEFI में जो BIOS में नहीं है? तो बात ये है कि UEFI इसीलिए सपोर्ट कर पा रहा है लार्ज हार्ड ड्राइव, इसीलिए फास्टर बूट टाइम कर पाता है बिकॉज UEFI यूजेस द GPT पार्टिशनिंग ड्राइव. नाउ कम्स टू मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स, दैट इज UEFI यूज़ करता है GPT पार्टीशन टेबल्स, जो कि आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में आती हैं, जबकि BIOS हमारा ट्रेडिशनल मेथड दैट इज़ MBR पार्टिशनिंग का यूज़ करता है. MBR इज मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसका यूज़ करता है, MBR पार्टिशनिंग का यूज़ करता है. सो GPT पार्टीशन टेबल का यूज़ करता है UEFI, जिसकी वजह से इट इज़ एबल टू लोड लोड लार्ज साइज ड्राइव्स एंड ऑल दैट. तो अब आता है कि ओके, व्हाई इज इट दैट, मतलब ऐसी क्या बुराई है MBR में जो वी हैव दिस GPT पार्टीशनिंग टेबल. So the problem with MBR is that it can only work with disks up to 2 TB in size. Like it can only work with disks up to 2 TB disks. अगर आपके पास 2 TB तक के डिस्क जो हैं अब आप रख सकते हो अपने लैपटॉप में, तभी आप उसमें MBR पार्टीशनिंग कर सकते हो, जबकि ऐसा GPT पार्टीशनिंग में ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है. सेकेंड इज लाइक यू कैन हैव ओनली 4 पार्टीशनिंग. इन MBR पार्टीशनिंग हमारे पास जो ट्रेडिशनल पहले का कोई लैपटॉप होगा तो उसमें देखना कि आपके पास इनबिल्ट 4 पार्टीशन होकर आते हैं.
So you can, because you can have only 4 partitioning when you are using MBR partitioning. And also one more problem is like it is not able to detect if the data is corrupt. Like let me tell you in detail. If you want more than so first of all let us talk about what is this partitioning thing. So MBR, as I told you, it only work with disks up to 2 TB of size. It only supports 4 partitioning primary partitions, and if you want more than 1 primary partitions, what you can do is you can make more partitions inside a primary partition. जबकि GPT इससे better है. Why? Because here every partition will have its globally unique identifier, and you can create like you can create many partitions, and only the size of the partition and the number of partitions, it will depend on many partitions depending on the operating system. आप मतलब 4 से तो बहुत ज़्यादा ही बना सकते हैं partitions, and that too they have ऐसा नहीं है कि आपने एक ही partition उसी के अंदर आप दूसरा एक पार्टीशन बनाएंगे. यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टीशन विल हैव इट्स ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर. सो इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. दूसरी बात, GPT बेस्ड ड्राइवर्स जो हैं दे मस्ट बी लाइक दे कैन बी मच लार्जर एंड दे कैन हैव अनलिमिटेड पार्टीशंस, एंड द नंबर ऑफ पार्टीशंस it only depends on the operating system, and also it can support larger drives जो कि ये नहीं कर सकता. इसीलिए GPT is better than, I think so. यही reason भी अगर हम बताएंगे then also the people will say that okay GPT is better than MBR, but ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक reason है, और भी reasons है. MBR में जो partitioning and boot data है, जो भी हमारा MBR में जो भी हमारा partitioning data और जो हमारा boot data होता है, boot and partitioning data होता है, वो सब एक ही जगह स्टोर होता है. दैट इज़ द मास्टर बूट रिकॉर्ड. ठीक है, वो सब एक ही जगह स्टोर होता है. तो इससे क्या होगा कि अगर आपका डेटा करप्ट हो गया देन इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, कभी निकाल ही नहीं पाएंगे उसको. बट यहाँ पे क्या होता है, दिस डेटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस इन द डिस्क, स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस. इससे क्या होता है कि इवन इफ इट इज़ करप्ट एट वन प्लेस यू कैन रिस्टोर इट फ्रॉम सम अदर प्लेस. तो इससे ऐसा नहीं है कि ओके यू आर इन बिग ट्रबल. वाई? बिकॉज यू कैन जस्ट रिस्टोर इट फ्रॉम सम अदर प्लेस. एक तरीका और है. तो ओके एक तो तरीका ये हो गया कि अगर डेटा करप्ट हो गया तो हम उसको कहीं से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, जो कि हम GPT में कर पाएंगे. और एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन द डेटा इज करप्ट. यू कैन आइडेंटिफाई इफ डेटा इज करप्ट यूजिंग CRC, क्योंकि इसके पास GPT के पास CRC होता है, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंस चेक, जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा. यूजिंग दिस CRC GPT कैन डिटेक्ट कि अगर डेटा करप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर डेटा करप्ट हुआ है देन व्हाट इट कैन डू, इट कैन जस्ट रिस्टोर दैट डेटा फ्रॉम सम अदर प्लेस. जबकि MBR को तो पता ही नहीं लग पाता, नो आइडिया. MBR को पता ही नहीं लग पाता है कि इफ़ द डेटा इज़ करप्ट, कि हमारा डेटा करप्ट भी हो गया. उसे तब पता चलता है जब उसका बूट होना बंद हो जाता है, या फिर जब उसका लैपटॉप काम करना बंद कर गया, पार्टीशंस गायब हो गए, तब पता चलता है ओ डेटा तो करप्ट हो चुका है. तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि GPT को फेस नहीं करनी पड़ती है. तो क्योंकि ये सारे रीजंस की वजह से आजकल UEFI आता है एंड विच सपोर्ट्स GPT, जबकि BIOS जो है वो ट्रेडिशनल मेथड MBR को सपोर्ट करता था. सो दिस इज इट. लाइक द फर्स्ट स्टेप इज लाइक द CPU विल लोड दिस UEFI or BIOS depending on what you have on your computer system. Now coming on to another step. So in step number 2, तो मेन चीज़ें तो आई थिंक सो समझ में आ गई होंगी. UEFI क्या है, BIOS क्या है, GPT, MBR पार्टीशनिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप. तो ये जो UEFI या BIOS जो भी आपके पास था, ओके आपके पास UEFI था या फिर आपके पास BIOS था, ये लोग क्या करेंगे, दे विल परफॉर्म सम टेस्ट. वो लोग कुछ टेस्ट करके देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, मतलब आगे का हमारा सारा मामला सेट है ना. तो जब अगर सारा कुछ सेट है तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग हैंड ओवर कर देते हैं दिस UEFI या BIOS. दे विल हैंड ओवर ऑल द थिंग्स टू द बूट लोडर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दे विल हैंड ओवर ऑल दीज थिंग्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स बूट लोडर. अब लोडर का क्या काम होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, लोडर इज बेसिकली, इसका काम होता है सेकेंडरी मेमोरी में चीज़ों को ढूंढना एंड देन उनको मेन मेमोरी में लेकर आना. So this loader will search for any thing in the secondary memory and will load that in the main memory.
and तो ये loader क्या करने वाला है, it will load that full operating system. Now this bootloader, it will load the operating system, it will load the full operating system in the main memory, and then you will have something in the main memory and the operating system will handle the rest. So now operating system will handle rest. So this is what is happening. So what happens when we open our computer system? Okay, thank you so much. Hope you have a nice day.